Hello everyone. Today we will discuss about electric dipole, and when dipole is kept in uniform electric field, so what effect will come, that we will see. Now what is an electric dipole? When you are taking two charges which are in unlike charges and kept at a very small distance. Here I am taking q and minus q, with distance between these two is 2l. Very small, so we keep in your mind always we will take 2l, not 2l. 2l is the distance between q and minus q. So then electric dipole moment means चार्ज, जो भी चार्ज हमने लिया उसका मैग्नीट्यूड एंड डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस. So here P is the representation of electric dipole. So it is the product of charge, that is Q, and distance between these two charges, 2L into Q, or Q into 2L we can write. Okay. It is a vector quantity, and vector quantity, so what direction will come? Direction always to minus P to plus P. This is minus q to plus q. In this way that we will go. If suppose here minus q plus q is given, तो we will say minus q से plus q है, तो हमेशा हमको याद रखना minus से plus की ओर होगा. And unit what will become? Unit of charge is coulomb and distance की meter. So unit of electric dipole moment is coulomb meter. When this setup, if we will keep in a uniform electric field, so what will come, what effect will come, that we will see. Electric field we are representing, uniform electric field we are representing in this way, which are parallel to each other and equidistance is there. When you will make a equidistance, then you can say your diagram is representing uniform electric field. Now in this uniform electric field, we kept here this dipole. Here positive charge is there, minus charge is there. So what will happen? This electric dipole we kept in this way कि this electric dipole is making angle theta with this horizontal line कोई भी आप बना दीजिए, उसके साथ ये एंगल थीटा बना रहा है. भले यहाँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बना दीजिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके. नाउ यू नो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन इज व्हाट? E is equal to F upon Q. So what force is acting on this plus Q charge? That we can say QE. And what force will act on this minus Q charge? That is the QE. Okay. And you know electric field direction and force direction will be same. Here E is this and QE. तो force की direction ये होगी. पर यहाँ पे माइनस चार्ज है, इसकी वजह से माइनस क्यू ई होने की वजह से यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये इस डायरेक्शन में लगी हुई है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी. अब एक फोर्स इसको इधर लग रही है, एक फोर्स इसको नीचे की ओर लग रही है. ये दोनों फोर्सेस जो हैं इक्वल तो हैं मैग्नीट्यूड में, लेकिन अनलाइक है, क्योंकि एक में पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे में नेगेटिव चार्ज है. और ये दोनों ये सब मिलके ये क्या है, एक ये फोर्स दिख रही है, एक ये दिख रही. देखो ये दो पैरेलल हैं कि नहीं है, तो ये मिलके क्या बना रही हैं, एक एक कपिल बना रही. इसकी वजह से ये आपका जो डाइपोल है वो रोटेट करने की कोशिश करेगा, जिसको हम रीस्टोरिंग कपिल कहेंगे. अब ये जब ये रोटेट करेगा तो रोटेशनल मोशन आएगी, तो यहाँ पे टॉर्क का रोल आएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स का आएगा. तो उसको हम किससे दिखाएंगे, टर्निंग इफेक्ट को. वी नो टर्निंग इफेक्ट इज इक्वल टू force, any force into perpendicular distance. Force is how much? However, here in this case QE, and perpendicular distance is how much? This is the total 2L. Okay, this is the 2L, and this we don't need, we want this only side. Angle theta is making here, so sine will come. So hypotenuse into sine theta, so this will come 2L sine theta. So force into 2L sine theta. अब force की value we will substitute QE 2L sine theta. So Q into 2L, it will form our electric dipole moment PE sine theta. So torque is equal to P cross E. अब torque is equal to जो है हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण इसमें डायरेक्शन जरूर होगी. टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा होने की वजह से टॉर्क हमारा इस थीटा पे डिपेंड कर रहा है. थीटा 0 हो जाए, 90 हो जाए, 180 हो जाए, तो टॉर्क भी हमारा जो है वो चेंज हो जाएगा. अब हमें टॉर्क मैक्सिमम कब मिलेगा, क्योंकि ये साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है, और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री जब होगी,
तो उस समय PE sin 90 होगा, दैट इज PE। और जब थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, जरा थीटा इज इक्वल टू 0 होने की सिचुएशन देखिए, ये इस तरीके का इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है और अब ये थीटा 0 हो जाएगा, यानी ये इस तरीके का आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये कि E जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में आपका डाइपोल भी सेटअप हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू 0 होने का मतलब हमारा कि यहाँ पे टॉर्क इज इक्वल टू PE sin 0, दैट इज 0। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे। ओके, एनी हाउ अगर इस हम डाइपोल को उठा के जो है, तब इस सिचुएशन में हमें स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा, ये लर्न रखना है। अगर हम अपोजिट में रख दें, अपोजिट में हो जाए, तो अपोजिट होने का मतलब पहले मान लो ये ऐसे था, अब इसको ऐसे रख दें, यानी कि अब पॉजिटिव चार्ज नीचे माइनस नेगेटिव चार्ज, तो इस समय भी ये रोटेट करेगा, तो थीटा इज इक्वल टू 0 ना होके उस समय थीटा इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। और इस सिचुएशन में हमको डाइपोल जो है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम देगा। तो 1 मार्क्स क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड where you will get stable equilibrium and where you will get unstable equilibrium. One more question can be asked. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जितना QE यहाँ लग रहा है उतना ही माइनस QE हो रहा है, यानी नेट फोर्स इज 0 बट टॉर्क आ रहा है, टॉर्क इज इक्वल टू PE sin थीटा आ रहा है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। बट इफ़ वी विल टेक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब कहीं लाइनें बहुत पास होंगी, जहाँ दूर दूर होंगी, जहाँ दूर दूर होंगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी, और जहाँ पास होंगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पास होने की वजह से ज़्यादा होगी। इस सिचुएशन में नेट फोर्स विल नॉट कम 0। इन दिस सिचुएशन यहाँ पे आपकी क्या होगी, नेट फोर्स डाइपोल की 0 के इक्वल नहीं होगी, कुछ ना कुछ नेट फोर्स भी होगी, साथ में साथ इसके आपके टॉर्क भी इस पे डाइपोल पे काम करेगा। और जब डाइपोल पैरेलल हो जाएगा E के, यानी थीटा इज इक्वल टू 0 होगा, तो टॉर्क इज इक्वल टू तो 0 हो जाएगा, लेकिन उस सिचुएशन में भी फोर्स कुछ ना कुछ काम करेगी। आई होप सो you understood this topic. So thank you viewers.